نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفۃ عین آمین۔ اسرت القرآن کے طرز کے سیشن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کا مصروفیات کے باوجود بھی اللہ کے لیے وقت نکالنا، علم کا شوق اور ذوق قبول عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث بنائے، آمین۔ الحمدللہ یہ تمام محفلیں جو اللہ کے ذکر سے سجی ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں فرشتوں کے پروں کے ساتھ، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ گھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اس دوران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو اللہ میرے ذکر کے لیے سبحان اللہ جمع ہوتے ہیں، صرف اور صرف خالص میرا ذکر کرتے ہیں، میری رضا کی باتیں سیکھتے ہیں، اور عذاب سے بچنے کا جو ہے نا ذکر کر کے مجھ سے میرے نافرمانی سے بچنے کے جو ہے نا چیزیں سیکھ کر اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی صرف اور صرف میرے لیے جو ہے نا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس محبت والی آنکھیں اور رشک والے فخر والے لمحے سے سبحان اللہ ہم لوگ سرفراز ہو رہے ہیں۔ اس خوش نصیبی کو ہم محسوس کریں، اس کو ضائع نہ کریں اور اس کا بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں، آمین۔ تو انشاءاللہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج ٹیوزڈے ہے تو آج ہماری تفسیر کی کلاس رہے گی، امہات المومنین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس سیشن کو ختم ہوگا۔ تو سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں سیدہ خدیجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے باجی۔ اچھا میں نے فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحكها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم۔
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा खतीजा, अल्लाह सुब्हाना ताला आपके इल्म में मजीद इजाफा अता फरमाए और दुनिया और आखिरत का खैर आपको अता करे। जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह सेशन का आगाज पर आगे करते हैं और इंशाल्लाह हमारे सामने जो है उम्महातुल मोमिनीन जो पेश करने वाली हैं वो हमारी सिस्टर रोजी। इंशाल्लाह उसकी तरफ देखते हैं, सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह। रोजी बाजी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। उसरातुल कुरान 2020 now presenting उम्महातुल मोमिनीन। उम्महातुल मोमिनीन यानी ईमान वालों के माएँ। कौन है ये? यह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बीबियों ने। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में ये लक़ब उन लोगों को दिया है कि अज़वाज मुतहरा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बीबियों ने ईमान वालों की माएँ। उम्महातुल मोमिनीन यानी माँ, यानी माँ, मुमिनीन यानी ईमान वालों के। और हम लोग बार बार अज़वाज मुतहरा ये टर्म भी यूज करते हैं। अज़वाज यानी स्पाउस, मुतहरा यानी पाक। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बीबियों को अज़वाज मुतहरा कहते हैं। और अभी हम लोग हमारा ये सेशन का जो नाम रखा है उम्महातुल मोमिनीन यानी ईमान वालों की माएँ। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया कि उन लोगों ने ईमान वालों की माएँ हैं। हम लोग ये कोई सेशन पढ़ चुके हैं। पढ़ते पढ़ते अभी आज हम लोग पढ़ेंगे ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा तो इन्होंने मक्का में पैदा हुई थी, कबीला बनो हिलालिया में। कबीला बनो हिलालिया में ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत कम उम्र पाई थी। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलते हैं और बहुत सारे इख्तिलाफ भी है। तो जो भी है जितना जानकारी हमें मिले हैं वही हम शेयर करेंगे, वही हम पढ़ेंगे और उसी में से ही हम इंशाल्लाह कुछ लेसन भी हासिल करेंगे। उनका पेरेंट्स यानी वालिदैन कौन थे? वालिद थे खुज़ैमा बिन अब्दुल्ला। खुज़ैमा बिन अब्दुल्ला उनका जो अब्बू उनका नाम था खुज़ैमा बिन अब्दुल्ला और माँ का नाम है हिंद बिन आउफ। क्योंकि इसमें भी कुछ रिवायत में डिफरेंट है तो इसीलिए मैं स्लाइड में नाम नहीं रखे हैं। तो इख्तिलाफ में हम बिल्कुल ना पढ़े। इख्तिलाफ में बिल्कुल ना पढ़े। जो भी चीजें रिवायत जो भी है थोड़ा बहुत डिफरेंस है इधर उधर तो हम इख्तिलाफ की तरफ ना जाए। हमारा जो गोल है, जो मकसद है, जो इरादा है, जो हमारा इंटेंशन है वो है कुछ नसीहत हासिल करना, कुछ लेसन लर्न करना। तो उनका माँ जो हिंद बिन आउफ ये भी बहुत अच्छी औरत थी और इनका गोद में कोई सारे जो लड़की पैदा हुई थी वो बाद में भी बहुत मशहूर हुई। इवन और एक अज़वाज मुतहरा जो मायमुना रज़ी अल्लाह अन्हा उन्होंने भी हिंद की बेटी थी यानी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सिस्टर थी। और हिंद जो माँ ज़ैनब की माँ हिंद उनका और भी जो बिटिया थी जो अच्छा खासा बहुत बड़ा सहाबी के साथ शादी हुआ था। इवन अस्मा बिन्त उमाइस जो है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी शादी हुआ था वो भी हिंद की ही बेटी। तो सुभान अल्लाह उनकी गोद में कितना अच्छा फूल खिले थे। तो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कब पैदा हुई थी? नबूवत का 13 साल करीब पहले। नबूवत का 13 साल करीब पहले ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा पैदा हुई थी। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के सामने दावत पेश की तो एक हंगामा मच गया था। इतना दिन जो मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन सादिक जानते थे, मानते थे, वही मक्का वाले ये दावत देने के बाद दुश्मन बन गए। लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग भी थे, कुछ पाकदिल लोग भी थे जिन्होंने ये नबूवत का ऐलान सुनते ही समीना व अताना कह के ईमान अपना लिया। तो इनमें ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा भी शामिल थी।
तो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, इनका शादी, पहला शादी किसके साथ हुआ था, इसमें भी इख्तिलाफ है। कुछ जगह में है पहला शादी हुआ था तुफेल बिन हारिस, तुफेल बिन हारिस से, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ, मिलजुल नहीं हुआ तो तलाक हो गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी से पहले ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा किसके बीवी थी, अब्दुल्ला बिन जहाश, उनका निकाह में थी अब्दुल्ला बिन जहाश। ये कौन है, ये भी बहुत जलीलुल कदर सहाबी थे, बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम ईमान अपनाए थे और हिजरत भी की थी और जंग उहुद में शरीक हुए थे। कौन, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का जो हस्बैंड अब्दुल्ला बिन जाहिश के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने जंग उहुद में शरीक हुए थे और ये जंग में शहीद हुए। जंग उहुद हम जानते हैं, ये भी बहुत हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मक्का से हिजरत करके आने के बाद सब घर बार छोड़ के सब लोग आए थे। नेक्स्ट ईयर जंगे बदर पेश आए हैं, फिर नेक्स्ट ईयर यानी हिजरत का 3री साल में जंगे उहुद पेश आए हैं और इसमें 70 सहाबा शहीद भी हो गए। ये जो ईमान वालों के अंदर इसका ये बहुत भारी पड़ा था। तो अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद होने के बाद बीबी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा वो विधवा यानी विडो हो गए, साथ में बच्चे भी है, बच्चे भी यतीम हो गए, बहुत ही मजबूर, हेल्पलेस हो गए, बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक्चुअली जंग उहुद में ये 70 सहाबी शहीद होने के बाद उस वक्त विडो का, विधवा का एक भारी तादाद मशरा में आ पड़े और ये सब बहुत ही मजबूर थे, कमजोर थे। ईमान लाने के लिए रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया था। कहाँ रहे, कैसे गुजारा हो, ये एक रियल प्रॉब्लम की तरह सोसाइटी में आ पड़े। हम जरा अगर थोड़ा सा हम सोचे कि मक्का से हिजरत करके आए, कुछ पास में नहीं है, फिर हस्बैंड भी शहीद हो गए, 2-3 साल ही हुआ, जंग उहुद 3 हिजरी में हुआ, फिर यतीम बच्चे भी है, कहाँ रहे, कोई रिश्तेदार शेल्टर नहीं दे रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो हालात हम समझ सकते हैं ना। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह तो रहमतुल लिल आलमीन, तमाम चीजें में बाखबर रहते थे, सबसे सही फैसला लेने वाला थे, सुझाव देने वाला थे, अच्छा सोचने वाला थे। रसूलुल्लाह ने ये मजबूर, लाचार, बेचारा विधवा को शादी करने के लिए सहाबी को इनकरेज करते थे कि इन लोगों को शादी करो, और सिर्फ इनकरेज करना नहीं, खुद भी ये काम में आगे बढ़े। हम जानते हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का रसूलुल्लाह ने शादी किया था। बाद में जो शादी हुआ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद, वो तमाम शादी में कुछ ना कुछ रीजन है जो बिल्कुल परफेक्ट रीजन है। तो रसूलुल्लाह ने सहाबियों को भी एनकरेज की कि ये जो विडो है ये कहाँ जाए, कहाँ कैसे रहे, इसे शादी कर लो, है, और खुद भी ये काम में आगे बढ़े। तो यहाँ से भी हमें लेसन लेना है कि दूसरों को सिर्फ हम ये करो वो करो ये कहना ही नहीं, खुद को भी वो काम करना चाहिए, करना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का शादी कब हुआ था? जंग उहुद में जो विधवा हुई थी उनमें ज़ैनब भी एक थी। विधवा होने के बाद ज़ैनब ने रिश्तेदारों के पास गए, मदद मांगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़ैनब से शादी की। क्यों? ताकि एक इज्जत वाले शहीद के बीवी इज्जत के साथ जिंदगी जी सके, एक घर मिले, एक सहारा मिले। शादी देखो, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ये कुछ डिफरेंट होता है। माँ बाप भाई जितना भी शेल्टर दे, है, लेकिन हस्बैंड का जो टेक केयर वो समथिंग डिफरेंट। घर में या सोसाइटी में, पड़ोस में देखो कोई भी विडो है, उसका कुछ भी तबीयत खराब हुआ है, कुछ है, ठीक है चलो छुट्टी के दिन हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इसी तरह। लेकिन बीवी का कुछ हो तो मिड नाइट में भी हस्बैंड डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ, तो हस्बैंड वाइफ का टेक केयर कुछ अलग है, और किसी को टेक केयर करने का ये भी बहुत अच्छा, अगर एज में मैच हो रहे हैं, शादी का उम्र है, तो शादी एक बहुत अच्छा तरीका है किसी को सहारा देने के लिए। और ये जो सहाबी अब्दुल्ला बिन जहाश, वो जंग लड़े, शहीद हुए, उसकी बीवी उसके बच्चे आज बेसहारा होके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई रिश्तेदार ने सहारा नहीं दे रहे हैं।
तो वो सहाबी के खातिर भी तो इसके बीवी बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए ना। ये भी एक रीजन है, क्योंकि ये देख के जब फिर से जरूरत होगा तो जो मेल मेंबर जेंट्स जंग लड़ाई में जा सकते, कि अगर वो शहीद हो गए तो उसका बीवी बच्चे बेसहारा नहीं होगा, कोई ना कोई उसे शेल्टर देगा, शादी करेगा, उसका आबरू रखेगा। तो ये भी एक रीजन है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी की। ये शादी कब हुए थे रसूलुल्लाह के साथ? जंगे उहुद के बाद, यानी 3 हिजरी में। 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा को शादी की और आपने शादी का मोहर भी अदा की। मोहर में किया था उसमें भी इख्तिलाफ है, बट मोहर अदा की। मेहर, जो इस्लामी शादी में मेहर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज में एक है। तो ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा कैसी थी, कैरेक्टर, बिहेवियर, कंट्रीब्यूशन उनका क्या है, थोड़ा सा एक नजर हम देखते हैं। ज़ैनब ने बहुत ही नरम रहम दिल औरत थी। बचपन से ही भूखा नंगा गरीब मिस्किन का दुख दर्द समझती थी, मिटाने का कोशिश भी करती थी। किसी ने भूखा है ये चीज ज़ैनब ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसा भी हुआ कि ज़ैनब ने खुद खाने बैठी, ऐसा वक्त पर कोई भूखा आके खाना मांगा, बस ज़ैनब ने अपना जो खा रहे थे वो खाना ही दे दिया। इसीलिए बचपन में ही ज़ैनब को एक लकाब मिला था, क्या है? उम्मुल मसाकिन। सुभान अल्लाह, उम्मुल मसाकिन यानी मिस्किनों के माँ, ये लकाब मिला था। तो ये पढ़ने में बोलने में कितना इजी है, आसानी से हम बोल देते हैं, एक लकाब मिला था। देखो ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा एक मोस्ट ऑर्डिनरी औरत थी, बहुत ही आम इंसान में से थी, और इसी तरह एक लकाब हासिल करना ये कुछ कम बात नहीं है, रियली ये बहुत ही बड़ा बात है। और एक बार उम्महातुल मोमिनीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे कि या रसूलुल्लाह, हम में से कौन, यानी अज़वाज मुतहरा में से कौन सबसे पहले इंतकाल करेगी? तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था मफहूम कि तुम में से जिसकी हाथ सबसे लंबी वो सबसे आगे इंतकाल करेगी। तो अज़वाज मुतहरा में सौदा बिन्त ज़म्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने थोड़ा मोटी थी ना, मोटी थी, बाल्की थी, उनकी हाथ भी लंबी थी। तो सबने सोचा कि सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ही पहले इंतकाल करेगी। लेकिन जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो सभी ने समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताना चाहे थे, उसका इनर मीनिंग क्या था वो समझ में आ गए। प्रैक्टिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की सदका खैरात की हाथ को बड़ा, बहुत बड़ा है ये बताया था। इसीलिए हमें भी कोई भी चीजें का सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं लेना चाहिए, उनको मतलब किस मौके पर वो बात हो रहे हैं वो भी उसी हिसाब से कुछ भी सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो किसी ने कुछ बोला, सिर्फ उसी का वर्ड मीनिंग से ही हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसका आगे पीछे के बात को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी मौके पर हम कि भूखा को खाना खिलाना, सबका खैरात के बारे में इस्लाम का क्या नजरिया है वो देखेंगे। कैसे? हदीस के मफहूम के जरिए। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है जिसका मफहूम इस तरह है कि एक बार एक इंसान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मफहूम, तुम खाना खिलाओ और पहचान वाला और बिना पहचान वाले सभी को सलाम करो। तिरमिजी में रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, किसी गरीब से मुंह ना मोड़ लो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ आधा खजूर है, यानी टोटल अगर आधा खजूर है तो भी, अगर तुम गरीबों को मोहब्बत करोगे, अपना करीब लाओगे, तो हशर के दिन अल्लाह तुम्हें करीब लाएगा। सही बुखारी में एक रिवायत से हमें और एक जरूरी चीज मालूम होता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया था कौन सा सदका सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मफहूम, वो सदका जब तुम खुद गरीबी की डर में हो, यानी वो अगर हम सदका कर दे तो हमें तकलीफ होगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, अगर ऐसा वक्त पर सदका किया जाए तो बहुत बेहतर है। तो ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा
उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद कुछ महीना बाद ही इंतकाल हो गया था, ज्यादा दिन नहीं जिंदगी पाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाई। उम्महातुल मोमिनीन में किसी का ये किस्मत नहीं हुआ था। उम्महातुल मोमिनीन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंतकाल हुआ था, इससे पहले खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की, लेकिन तब तक जनाजा का हुक्म नहीं हुआ था। तो उम्महातुल मोमिनीनों में ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हा का जनाजा खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाए थे और मदीना का जो मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बाकी में दफनाया गया। तो ये है ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हा का बारे में थोड़ा सा जो जानकारी हमारा। तो अभी हमारा लेसन है, इससे हम लेसन क्या ले, हमें कुछ लेसन लेने का है ना। हम एक लेसन जरूर लेंगे कि उम्मुल मसाकिन है कितना कम जिंदगी पाए थे। ज्यादातर रिवायत में है 30 या 31 इयर्स एज में इंतकाल हो गया था ज्यादातर रिवायत में, बट वो तो वर्ल्डली लाइफ था। लेकिन आज भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो जिंदगी उनका छोटा नहीं था, आज भी जिक्र हो रहे हैं, यानी आज भी उनसे हम लेसन हासिल कर रहे हैं। तो उन्होंने सदका खैरात बहुत ज्यादा किया करती थी। तो हमने अभी हदीस का मफहूम भी पढ़े हैं, हम सब ये हदीस जानते भी है, कुरान के कोई सारे आयतें भी हमें मालूम है सदका खैरात के बारे में। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, हम जानते बहुत चीजें हैं, हम करे क्या, ये जो हम सुने हैं, ये जो हम पढ़े हैं, ये जो हम जानते हैं, इसे इम्प्लीमेंट हम कैसे करें। हाँ, वो करने का काम किया है, हमें उस पॉइंट पर जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं हम खाना खिलाएं, हम भी चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं अभी हम लोग जैसा सोसाइटी में हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर आपस में बात करें तो सिस्टर्स कहते हैं अरे हम भी चाहते हैं खाना खिलाएं, लेकिन किसे खिलाएं, कोई मिलता ही नहीं। तो देखो हमारा गोल है किसी को खाना खिलाना, यानी जो नीडी पर्सन ऐसा किसी को खाना खिलाना। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंट तरीका, किसी भी हाल में हम उस गोल में पहुंचेंगे, हम कोई भूखा को खाना खिलाएंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करें? हमारे लिए सबसे इजीली अवेलेबल है हमारा मेड, हमारा बिल्डिंग का केयर टेकर, ऐसा लोग। तो हम उन लोगों को वीकली एक दिन, नहीं तो मंथली, जो हमारा जो इजीली हो सके हैं, हाँ? लेकिन एक आदत बना ले, जो हम महीना में एक दिन या वीक में एक दिन जो इजी होता वो हम करेंगे। तो हमें लगता है कि मेड नहीं लेते हैं, लेकिन मेड को अगर इज्जत के साथ दिया जाए तो वो लेगी, वो जरूर लेगी। हम अच्छा से जो डिस्पोजेबल कंटेनर में अच्छा से उसे प्रॉपर पैक करके दे ठीक ठाक, तो वो जरूर लेगी, ऐसा नहीं वो नहीं लेगी। हम कोशिश तो करके देखें, क्योंकि फिर कभी कभी लगता है वो इतना नीडी नहीं है, वो भूखी नहीं है, वो खाना नहीं लेना चाहती है। लेकिन वही बात है ना कि देखो जब एक डिटेक्टिव जिस तक पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे के पास जाते हैं, बहुत सारे को सवाल जवाब करते हैं, फिर वो पहुंच जाता है। तो हमें भी भूखा तक पहुंचने के लिए है स्टेप बाय स्टेप जाना है, जो पहले हमें मिल रहे हैं उसे ही खिलाओ, हाँ, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसके अलावा हम और एक काम कर सकते हैं, हम सूखा खाना घर में जरूर, सूखा चीज जैसे बिस्किट की छोटा छोटा पैकेट, वेफर, जूस, कुकीज, फिर जो चोकोपाई, इसी तरह चीज जो महीना रहता है घर में, वो घर में रखिए। जो सिलेंडर सप्लाई देने के लिए भी आते हैं, सिलेंडर लेके, कभी कारपेंटर, प्लम्बर आते हैं, कुरियर बॉय आते हैं, जो भी घर में आते हैं, हम उसे वो जो सूखा चीज और पैक्ड और सील्ड वो ऑफर करें, वो उसे दे। तो हमें कैसे मालूम कि वो भूखा नहीं है? सिलेंडर सप्लाई करते करते हो सकता है बहुत भूखा है, कुरियर बॉय इधर उधर डिलीवर करते करते हो सकता है बहुत ही प्यासा है, एक जूस दिया, बाप रे वो जूस पी के मेरा जान में जान आया, ऐसा लगता है ना। तो इसी तरह हम खाना खिलाने का कोशिश करते रहे। फिर नॉट ओनली खाना भी खाना खिलाने से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलते हैं और उसका कुछ असर डिफरेंट है। फिर दूसरा तरफ हम पैसा भी सदका करना भी हमें वो भी प्रैक्टिस में लाना चाहिए।
हम लाएंगे भी जरूर। कैसे? जैसे कि हमारा इरादा होता है, हम वॉकिंग जाएंगे या मार्केट जाएंगे तो हम सदका करेंगे। जो नीडी पर्सन बैठे भी रहे, तो इंडिया में तो बहुत मिल जाता है इजीली, तो हमारा इरादा रहते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं, जब हम बेगार को या कोई मिस्किन को देखते हैं, अरे पर्स में पैसा कहाँ है, पैसा ही नहीं मिल रहा है, मुझे 5 रुपया देना है, नहीं मिल रहा है। हस्बैंड को बुलाते हैं, हाँ जी सुनते हो, है कि आपके पास 5 रुपया दीजिए ना, इन्हें देना है। हस्बैंड भी नाराज होके खड़े हो जाते हैं, बेजार होके वॉलेट ढूंढने लगते हैं। आसपास के लोग चलने वाले देखते हैं, वो बेचारी मिस्किन या बेगार वो भी पजल होके देखते रहते हैं। ऐसा ना करें, हम ईमान वाले हैं, हम वेल ऑर्गेनाइज प्री प्लान होना चाहिए। हमें 5 रुपया सदका करना है ना, अपना बैग का एक पर्टिकुलर चेन में वही 5 रुपया रख ले। अगर हम बिना देखे भी हाथ डाले वो चेन में, तो वही 5 रुपया हाथ में आ जाए, हम चुपचाप उसे दे दे। तो इसी तरह हम प्री प्लान होके, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके, हम इरादा के साथ, नियत के साथ एक अपना जिंदगी का रूटीन बना ले, एक रूटीन बना ले। हम उम्महातुल मोमिनीन पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम हदीस पढ़ रहे हैं, कितना सदका खैरात के बारे में कितना हदीस हमारा और कितना आयत हमारा टिप ऑफ द टंग है, बट इम्प्लीमेंट करने के टाइम हम अरे किसे दे, कैसे दे, अरे वो नहीं लेते, होता नहीं। इसी तरह पैसा भी अरे उसी टाइम चेंज नहीं मिलते हैं, हम उलझन में पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, हम सबक ले रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी करें। इसी तरह जो छोटा छोटा टिप्स हमें लगा वो हम लोगों ने शेयर की, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें करने का तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए करना आसान कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और भी लेसन लेके और भी उम्महातुल मोमिनीन लेके हम हाजिर होंगे। और कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह हमने हलाल तैयब रिज़्क अता करे। जिसका भी रिज़्क का तंगी हो रहे हैं अल्लाह वो मिटा दे। अल्लाह सबको इज्जत का रिज़्क अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।